So today's topic of discussion on the WhatsApp chat, what is it? Inheritance, right? So we all know what is inheritance from C++ days. So what do I need to do I need to explain ki what is inheritance? Inheritance क्या है? Properties of one class is inherited by the another class. So here how many classes do you all see? Do you all see the screen? Do you all see the screen which I have shared? अभी so how many classes do you all see over here? Black और red में? ब्लैक कौन सी है? उसके डेटा मेंबर्स क्या क्या है? और उसके मेथड्स कौन से रहेंगे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन और एक डिस्प्ले फंक्शन. Get salary function will be a function to return the salary of the employee. Okay, मैनेजर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है? What does HRA mean? House rent allowance. What does HRA mean? What does DA mean? Daily allowance. What does DA mean? So what will be the total earning of the manager? देखो यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है मैंने, क्या है? Yeah, so this is the total earning of the manager and you have to display the details of the manager. So employee, the manager also is an employee, right? The manager also is an employee, yes or no? So if all the employees they earn 10,000 rupees, all the employees earn 10,000 plus extra the manager, this is the salary, right? Plus extra the manager gets an HRA of 5,000 and a daily allowance of let's say 4,000. So what will be the total salary of the manager? या लेट्स से डेली अलाउंस को मंथली गिनो, इसको एम ए कर दो, क्या कर दो उसको, डीए मत करो, इसको एम ए करो, क्या करो, एम ए कर दो मंथली अलाउंस. तो कितना, तो टोटल सैलरी, टोटल अर्निंग कितना है मैनेजर का? 10,000 plus 5 plus 4, that is 19,000. Yes or no? So if I make the class employee, how many attributes will I have in the class employee? Data members 3. And how many? So first I will write the parameterized constructor for that. What will I write for that first? So how many arguments will that constructor take? 3. And then I will write a function which will return the salary of the employee and then display the details. So let's get started. Let's run. Do you all see the Notepad++? Yes, sir. So first क्या बनाया, class एम्प्लॉय बनाया, उसमें डिटेल्स क्या क्या चाहिए एम्प्लॉय क्लास में? ई नंबर, ई नेम, सैलरी ना. तो इंटीजर ई नंबर, string e name and double the salary. ठीक है. Now how do I write the parameterized constructor? क्लास का जो नाम है वो, तो पहला आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का, दूसरा आर्ग्यूमेंट और तीसरा आर्ग्यूमेंट
What will go into, where will A go into? Or B will go into, and C will go into. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. इसको डिस्प्ले भी कर दो. तो void display employee. So how do I display this? और क्या डिस्प्ले करेंगे? एम्प्लॉय नंबर इज, और जस्ट मेक इट सिंपल. व्हाट इज एम्प्लॉय नंबर का वेरिएबल? ए नंबर कॉन्कैटेट विद अ डबल कोट्स खाली विद अ ई नेम डबल कोट्स खाली प्लस अ सेल. क्या हुआ? Yes, no, maybe. Have you all understood till here? Nothing much I have done over here. Plain class बनाया है ना? हाँ. तो इसमें से अभी क्या क्या हो गया? वेरिएबल डिक्लेयर हो गए. ये हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया. हाँ. ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया. डिस्प्ले हो गया. अब क्या बचा? सिर्फ एक फंक्शन बचा जो क्या, व्हाट विल द फंक्शन रिटर्न? What will the function return over here? The salary of the employee, no? Because to calculate total earning of the manager, I want salary of the employee. So I'll write a function which will return me the salary. Salary किस टाइप का है? तो इसके लिए किस टाइप का रिटर्न वैल्यू? What is the return value of the function? And what will it return? Salary. यहाँ तक कोई शक? और क्लास खत्म हो गई. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी? ठीक है. तो क्लास एम्प्लॉय, पब्लिक कंस्ट्रक्टर, डिस्प्ले एम्प्लॉय और गेट फंक्शन. I'll write the function name get employee sal. What is the function name? फंक्शन का नाम क्या लिखा है? Clear? Now let's write a class manager which will inherit the employee. So class लिखा मैंने mgr. How do you inherit in Java? Which keyword? Extends. Beautiful. Extends which class? तो ये ऊपर का सारा डेटा आ गया इसके अंदर. Let's make all of them as public. तो is public data inherited? Yes or no? Yes sir. तो ये सब इनहेरिट हो गया ना. तो ये पब्लिक है, इसको ही पब्लिक करता हूँ, इसको ही पब्लिक करता हूँ. सबका सब पब्लिक है. तो सबका सब इनहेरिट हुआ क्या नहीं हुआ? हो गया. प्लस मैनेजर के खुद के एट्रीब्यूट्स क्या थे? HRA, MA और टोटल. HRA, MA और टोटल अर्निंग. तो टोटल तो क्या था? डबल द HRA एंड डबल द MA एंड डबल द, तो साथ में कर लेते तीनों भी. क्लियर? हमको हैबिट बनी हुई है अलग अलग लाइन पे लिखने की. आई एंजॉय दैट बेटर. तो एक लाइन पे लिखना इज गुड, बट मुझे ये समझ में आता कि मैं काउंट कर सकूं. ठीक है भाई यहाँ तक? अब मुझे बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, सोच के बताना, डोंट रश इनटू इट. एम्प्लॉय क्लास में टोटल कितने डेटा मेंबर्स हैं? कितने हैं डेटा मेंबर्स? मेंबर फंक्शन नहीं बोला. कितने हैं? तीन है. वेरी गुड. अब बताओ टोटल डेटा मेंबर्स मैनेजर में कितने हैं? हाँ,
Who's telling 6? गुजराती will always say 6. हाँ, तो वो 6 कैसे हुआ? एम्प्लॉई के 3 और खुद के 3. वेरी गुड. तो जब उसमें से हमारे पास हम प्रोवाइड क्या करेंगे? HRA और MA प्रोवाइड करेंगे. टोटल अर्न वी हैव टू कैलकुलेट. टोटल अर्न व्हाट वी हैव टू डू? कैलकुलेट. देखो नीचे मैंने लिखा होगा, नीचे मैंने शो किया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल अर्न बाय पुटिंग द सैलरी, HRA एंड दैट MA. So this class, employee class, had how many data members total? 3. So उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कितने डेटा था? फिर कितना था? 3 था. तो मैनेजर का जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, मैनेजर का कंस्ट्रक्टर, तो मैनेजर के कंस्ट्रक्टर में कितने लूंगा फिर मैं? नहीं, हमको टोटल अर्न कैलकुलेट करना है. टोटल अर्न क्या करना है? 5. तो 5 लेंगे. ठीक है, क्योंकि टोटल अर्न कैलकुलेट करना है. तो पहला किस टाइप का होगा? इंट. दूसरा, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ. ठीक है. अब जो है यहाँ पर तुम जरा ध्यान दो. अभी ये A, B और C क्या है? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी ना. A, B, C क्या है? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी. ओके. नाउ लाइन नंबर 34 इज वेयर रिटन वेयर? लाइन नंबर 34 किधर है? ए में क्या है? एम्प्लॉय नंबर. B में एम्प्लॉय नेम और C में. सैलरी. तो मतलब A जाएगा एम्प्लॉय नंबर में, B जाएगा एम्प्लॉय नेम में, C जाएगा सैलरी में. वो कोड मैंने ऑलरेडी लिखा है. A जाएगा एम्प्लॉय नंबर, B जाएगा नेम और C जाएगा सैलरी. देखो ये कोड लिखा हुआ है. यस और नो? तो ये कोड कहाँ लिखा है? लाइन नंबर 9, 10, 11 किधर लिखे हुए हैं? Okay, here now tell me, employee or manager, which is the super class, which is the sub class, which is the parent class, which is the child class? Tell me. Employee is a super class, manager is sub class. Which is parent class? तो सुपर बोलो या पेरेंट बोलो एक ही बात है ना, या सब बोलो और चाइल्ड बोलो. तो हम लोग कौन सा ज्यादा फॉलो करेंगे? We will follow this terminology more, super and sub. ये हम ज्यादा फॉलो करेंगे, सुपर सब. तो which is the super class, which is the sub class? ओके. सो ये जो है लाइन नंबर 9, 10, 11 ये किधर है? सुपर क्लास में. सुपर क्लास के किस में? वेरी गुड. सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में. टेक अ ब्रीदर फॉर फ्यू मिनट्स. I'll join you again. Yes, sir. Okay, welcome guys. Tell me, so line number 9, 10, 11 कहाँ लिखा हुआ है? Tell me. Yeah, it's in the constructor of which class? Which class constructor? Super class constructor. Very good. Absolutely correct. And now where are we? Line number 34. Where are we? Subclass. Line number 34. One keyword is missing. You're missing one keyword. Manager वाला. Yes. तो ये मैनेज MGR क्या है? Manager. Constructor, parameterized.
हाँ तो कौन से क्लास का? मैनेजर क्लास कौन सी है? सब क्लास। तो वही बोल रहा हूँ, तो लाइन नंबर 34 वेयर आर वी आर इन द सब क्लास कंस्ट्रक्टर। वेयर आर वी राइट नाउ? सब क्लास कंस्ट्रक्टर। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये सुपर क्लास। तो अभी मुझे ए बी और सी कौन इनिशियलाइज करके दे रहा है? ए बी और सी कौन दे रहा है इनिशियलाइज करके? हाँ तो अगर आपने को तो टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द सब क्लास कंस्ट्रक्टर जस्ट यूज द सुपर कीवर्ड। तो सुपर आया समझ में? समझा क्या करेगा ये? तो ये क्या करेगा? तो सुपर कॉल करते हो मुझे पास क्या करना है? ए कॉमा बी कॉमा सी। और मेरे डी और ई कहां जाएंगे? समझा ये? किसको ये समझ में आया बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो व्हाट डज द सुपर कीवर्ड डू? It calls the methods of the super class. It calls the functions of the so तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सुपर यूज किया है, तो ये कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर। क्या कॉल करेगा ये? तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए? एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग और एक डबल। तो यहां से मैंने मेरे सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में से एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग और डबल उसको पास कर दिया, और जो बचे हुए दो डबल है वो मैंने अपने क्लास के वेरिएबल्स को असाइन कर दिए। आया समझ में ये? ओके अब अगर मुझे डिस्प्ले करना है मैनेजर को तो क्या लिखूंगा मैं? ओके फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट द अर्निंग फर्स्ट। फंक्शन क्या लिखा मैंने उसके लिए? तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए मैनेजर का? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? आई नीड द सैलरी। सैलरी कौन देगा मुझको? सैलरी मुझे यहां से मिलेगी। कहां से मिलेगी? गेट एम्प्लॉय सैल फंक्शन ना। तो ये फंक्शन कौन से क्लास में है? सुपर क्लास में है। गेट एम्प्लॉय सैलरी कौन से क्लास का फंक्शन है? तो अगर वो मुझे कॉल करना है सब क्लास में से तो कैसे कॉल करूंगा मैं? सुपर डॉट गेट एम्प्लॉय सैल। दिस विल रिटर्न मी व्हाट? सैलरी राइट। तो आई विल टेक अ वेरिएबल ओवर हियर टेम्प नाम से। तो ओके वो डबल आ गया। तो टेम्प में क्या आ गया अभी? टेम्प में क्या आ गया? सैलरी आ गया। टेम्प में आ गया सैलरी। अब मुझे इसमें क्या क्या ऐड करना है टोटल अर्निंग निकालने के लिए? HRA और सैलरी। तो टेम्प मतलब सैलरी प्लस HRA प्लस MA। एमए है क्या? हाँ। समझ में आया तुम लोगों को क्या चल रहा है ये? इज सुपर इज आई यू अंडरस्टैंड व्हाट सुपर इज डूइंग? व्हाट इज सुपर डूइंग? या सो यहाँ पर मैंने सिर्फ सुपर यूज किया है, सुपर डॉट कुछ यूज नहीं किया। तो ये किसको कॉल करेगा? सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा वो। और यहाँ पर मैंने डॉट एक फंक्शन का नाम यूज किया है।
तो अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है डायरेक्टली सुपर से कॉल करो, फंक्शन को कॉल करना है तो डॉट फंक्शन का नाम लिख के कॉल करो। समझ में आया? हाँ सर। चलो, तो अभी मुझे टोटल अर्निंग मिल गया। हाँ। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल्स। हाउ विल आई डू? Public void Display manager. Now what will this display manager do? Display the manager's salary. Everything, details. It will print the HRA भी प्रिंट करेगा, प्लस DA भी प्रिंट करेगा, प्लस MA है ना, और टोटल अर्न भी प्रिंट कर देगा। समझ में आया? But I also want to display the employee details of employee. I also want to display this. I also want to display this also, employee number, employee name, salary. So who is displaying that for me? So who is displaying that for me? तो अभी मुझे वो कॉल करना है, इधर तो कैसे करूंगा कॉल, बताओ? ब्यूटीफुल, क्या बात है, एक नंबर है तुम लोग। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमको इनके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो हम लोग बनाएंगे क्लास इनहेरिट डेमो। इसमें क्या बनाएंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी टोटल कितने क्लास हो गए फिर अपने पास? अभी प्रोग्राम में टोटल कितने क्लास हो गए? तो मैं पब्लिक किसको बनाऊं? तो अभी समझो फादर है और पेरेंट है और चाइल्ड है। पेरेंट के पास $1 मिलियन है, पेरेंट का पैसा चाइल्ड ने इनहेरिट कर लिया। चाइल्ड के पास भी $1 मिलियन थे, तो अभी चाइल्ड के पास टोटल कितने $1 मिलियन हो गए? 2। तो अब पुलिस, अभी चोर किसके पीछे पड़ेगा अभी? चाइल्ड। तो अभी ऑब्जेक्ट में किसका बनाऊं? एम्प्लॉय का बनाऊं कि मैनेजर का बनाऊं? तो मैनेजर को ऑब्जेक्ट बनाया, M1 इक्वल्स टू न्यू मैनेजर। अब मैनेजर का कंस्ट्रक्टर कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है? कितने ले रहा है आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर? 5। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है उसका? एम्प्लॉय नंबर। दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा आर्ग्यूमेंट, तो ये हो गया 10,000 बेसिक। फिर HRA कितना था अपना? 5,000, और फिर 4,000 था वो। समझ में आया ये? So what this will go to whom? This will go to the constructor. Now what will I call next? Calculate manager earning. तो वो किसका मेथड है मैनेजर अर्निंग? तो उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट लगेगा अपने को? सब क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा। और फिर नेक्स्ट व्हाट विल आई कॉल? डिस्प्ले मैनेजर। समझ में आया ये प्रोग्राम? डिस्प्ले मैनेजर कॉल किया तो डिस्प्ले मैनेजर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले एम्प्लॉय को भी कॉल कर रहा है, तो 6 के 6 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। इट विल डिस्प्ले यू ऑल द डिटेल्स। इट विल डिस्प्ले यू एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, HRA, MA and total earning. It will display you all 6, right? So now how do I save this program as? Inherit demo. So we go and WebTech पे तो नहीं, हम लोग एक स्टेप ऊपर जाए। We are in core Java. We'll make a folder by the name inheritance.
और उसमें हम लोग सेव कर देंगे डॉट जावा। समझ में आया प्रोग्राम भाई तुम लोगों को पूरा? अभी इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा बताओ? Do you all see the black screen? What should be the output of this program? 101 Alice, 10,000, 5,000, 4,000 और टोटल अर्निंग कितना है? 19,000। ठीक है, देखो आया आउटपुट आया, दिख रहा है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, फिर HRA, MA और टोटल सैलरी। क्लियर? सो दिस इज योर सिंपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। देखो इसको सुपर समझ में आया? सुपर कीवर्ड क्या करता है? सुपर क्लास, इट फ्रॉम द सब क्लास you can call function of the super class using super keyword। समझ में आया? ओके, अगर सुपर के आगे कोई कुछ भी नहीं लिखा है मतलब इट इज कॉल व्हाट? और अगर कोई सुपर के बाद में कोई फंक्शन का नाम लिखा है तो डॉट से करना है। समझ में आया? और अगर आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो तो सुपर शुड बी द फर्स्ट लाइन, सुपर शुड बी द, यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि HRA और HRA डाल दो D में, MA डाल दो E में और फिर सुपर कॉल करो, ये अलाउड नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है। वो जावा का सिंटैक्स है वो। तो अगर आप सुपर यूज कर रहे हो कंस्ट्रक्टर में तो सुपर आपका पहला लाइन होना चाहिए उस कंस्ट्रक्टर का। समझ में आया? तो सुपर, और सुपर कॉल करते वक्त तो when I am calling super class constructor is accepting 3 arguments, integer, string and double, so I have to pass it, so I can pass them as arguments to super also as ABC। okay, is Shania there? Shania शानिया है क्या? ये लोग म्यूट करके चले जाते हैं यार। क्या शी इज देयर? आई कैन सी हर, आई कैन सी हर, शी इज देयर। आर यू देयर मैम? शी सेंट मी अ क्वेरी। देखो क्लास एम्प्लॉय में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या? सर अगर हमें सुनो ना, अगर वो वैल्यू हमने पैरामीटराइज की है ना, मतलब हम लोगों ने प्रोग्रामर ने डाली है, हाँ, वो यूजर का, हाँ, तो ये जितने भी है ना 5 चीजें ये आप एक्सेप्ट कर लो यूजर से इधर स्कैनर लगा के। यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट डिस्प्ले बनाकर भी कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, यस। या फिर यहाँ पर स्कैनर बनाओ, यहाँ पर एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, जो भी system डॉट इन जो भी करते हैं आपको सिंटैक्स मालूम है अभी आपको, और फिर यहाँ पर 5 चीजें एक्सेप्ट कर लो, एंटर एम्प्लॉय नंबर, एंटर एम्प्लॉय नेम, एंटर सैलरी, एंटर HRA, एंटर MA, और वो पांचों के पांचों इसको एज आर्गुमेंट पास कर दो ABCDEF। ऊपर दोनों बार एक्सेप्ट फंक्शन मारने की जरूरत नहीं है, बस मेन में स्कैन करके एज आर्गुमेंट फंक्शन को पास कर दो कंस्ट्रक्टर को। तो ये जो मैंने हार्ड कोडेड लिया, ये जो मैंने हार्ड कोडेड किया है ना 101 एलिस 10,000 5,000 4,000, ये आप स्कैनर से मेन में एक्सेप्ट करके एज आर्गुमेंट ABCDE पास कर सकते हो, ये बोल रहा हूँ मैं। या फिर आप इधर जाके एक्सेप्ट फंक्शन लिखो और एक्सेप्ट फंक्शन में स्कैनर से एक्सेप्ट कर लो, इट्स अप टू यू। समझा ये प्रोग्राम? चलो अभी मीटिंग खत्म होने आ रही है, मैं आपको ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ, चलो प्रैक्टिस करो, ठीक है? फिर हम आगे और फ्लेवर्स लेंगे इनहेरिटेंस के। चलो बाय, टेक केयर।